टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स प्रेजेंट किए और नंबर्स के बाद हमारे साथ मैनेजमेंट से बात करने के लिए आज ग्रुप सीएफओ मिस्टर पीबी बालाजी बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बालाजी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे फ्रंट पर, चाहे वो एबिटा के फ्रंट पे हो, रेवेन्यू के फ्रंट पे और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे भी हो, रिकॉर्ड्स देखने को मिले पूरे FY25 में। क्या मेजर हाईलाइट्स रहे इस पूरे साल के? फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पिछले बरस जो था वो इंटरेस्टिंग ईयर था क्योंकि FY24 जो था वो ऑलरेडी अ रिकॉर्ड ईयर था, तो उसको और बेहतरीन बनाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गॉट डन। पर्टिकुलर हाइलाइट्स देखेंगे तो पहले हमारा रेवेन्यू एट ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ was the highest. Second was the profit before tax and exceptional item at almost 34,000 crores was the highest. EBITDA देखेंगे तो 58,000 crores पे आया था. That's amongst the highest, the second highest number there. The previous year was the highest. And investments 49,000 crores जो हमने किया वो highest था. इन्वेस्टमेंट उतना इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो फ्री कैश फ्लोस हमने जनरेट किया तो ऑलमोस्ट 22,000 crores. That's another very strong number, second highest that was there. And because of all this हमने हमारा net debt जो था, it finally after 20 odd years we have now become net cash with despite all these investments there. And these investments का return जो है वो almost 17% में आ रहा है. So business ने हमने I think at an overall well-rounded delivery हुआ है. और ये delivery ये नहीं कि एक ही business deliver किया बाकी ने नहीं किया. Almost every business delivered together. Yes, there are a few opportunities in every business जो है. Magar I think overall I'm very pleased that this has happened this way, number one. Number two, it's very also important that it happened in this way क्योंकि external environment last year significantly more challenging compared to the previous year जो था. So ये environment में deliver करना is also tells you fundamentals of the business are good and business resilient बन रहा है. जो external challenges के बावजूद deliver कर रहा है वो बहुत important है. Therefore, if you look at the dividend number that we've declared, last year हमने ₹3 ordinary dividend दिया, ₹3 special dividend दिया था. Special dividend जो हमने TTL हमने बेचा था, उसका money is that we also said we will recognize the reward the shareholder with that. This year we have stepped it up. The ordinary dividend has gone to ₹6 per share. That is a sign of confidence that fundamentals अच्छे हैं, debt कम हुआ है, and therefore we will be able to instead of paying the bank, we are paying the shareholders. जो सबके लिए अच्छा है. That is how we are looking at the entire business. मिस्टर बालाजी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे फ्रंट पे इस बार के नंबर्स अच्छे थे, मार्जिन के फ्रंट पे भी अगर आप CV सेगमेंट में देखें वहाँ मार्जिन एक्सपेंशन थी, PV सेगमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन थी, बट JLR से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है. UK सब्सिडरी से क्या प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है और आगे चलते हुए उसके लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं? क्योंकि टैरिफ का जो एक बहुत बड़ा टेंशन है, UK से भले ही टैरिफ स्लैश होकर 10% हुआ हो, लेकिन अब भी 2.5% से तो ऊपर ही है. करेक्ट. See, last year JLR जो है, अब ठीक कह रहे हैं आप, JLR numbers last year delivered 8.5% EBIT. It is exactly in line with the previous year. Yes, that number initially would have preferred it to be higher, but जो external environment जो है वो भी extremely difficult environment. हम ही एक OEM है जो किसी ने हमने guidance drop नहीं किया. You look at the most global OEMs, any big name you take has dropped guidance by significant numbers, 200 bips, 300 bips drop किया है. Lot of the global luxury OEMs profitability is significantly lower than JLR. So therefore, I think the JLR delivery is creditable because it has to be seen in context. ये context में deliver करना is a very very big achievement. Second, what we should say is that tariffs जो आप ठीक बोल रहे हैं, yes, 25 has come to 10 UK, but 2.5 has gone to 10. So that is more important for us. So yes, situation पहले से अच्छे हैं, मगर हमको और भी काम करना पड़ेगा. इसलिए तो हम बोल रहे हैं पहले इसमें दो तरह का काम करना पड़ेगा. पहले डिमांड है. जब 10% का टैरिफ आता है, इट्स क्वाइट लाइकली देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीज उधर होएगा ही बिकॉज वी कांट मैनेज दैट काइंड ऑफ एन इंक्रीज. यस, बट दैट विल मीन डिमांड विल कम डाउन टू सम एक्सटेंट इन द US. मगर हमारा UK बिजनेस अच्छा कर रहा है. चाइना स्टेबलाइज हो गया है. यूरोप इज नाउ स्टार्टिंग टू कम बैक अगेन. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस. तो वी शुड बी एबल टू इधर से डिमांड का डाइवर्ट करके ये मार्केट्स में लेना पड़ेगा. कितना कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा, मगर डेफिनेटली वी विल डाइवर्सिफाइड डिमांड सोर्सेस, नंबर वन. सेकेंड, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन आएगा टैरिफ की वजह से, उसको हमको वी विल हैव टू मिटिगेट पार्ट ऑफ इट थ्रू आवर ओन कॉस्ट प्रोग्राम्स. जो वारंटी हो, जो VME हो, जो एक्सवर्क्स कॉस्ट हो, उसका पूरा प्लान बन रहा है.
एंड दैट प्लान वी विल शेयर अगेन ऑन द 16 तारीख जून में जो हमारा इन्वेस्टर डे JLR में है, उस समय हम प्लान उसका ट्राई करेंगे. वन थिंग JLR ने बहुत अच्छी तरह किया है अक्रॉस ईयर्स, जो उसका कॉस्ट आउट टारगेट्स वो डालते हैं, वो डिलीवर करते हैं, and they over deliver on that number because the team is very focused on delivery. So that is what we want to do, but we want to do it carefully without impacting investments, क्योंकि ये टैरिफ और जो भी चैलेंजेस है वो शॉर्ट टर्म इश्यूज है. स्ट्रक्चरल इसमें कितना बचेगा देखना पड़ेगा, बिकॉज टू मनी नेगोशिएशंस ग्लोबली चल रहा है. बट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर प्रोडक्ट ऑफेंसिव इन दैट फ्रंट. तो इन्वेस्टमेंट हम टच ही नहीं कर रहे हैं. उसको फंड करने के लिए कैश प्रोग्राम डाल रहे हैं टू एंश्योर जो भी इन्वेस्टमेंट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही फंड होएगा. सो डेट विल नॉट गो बैक अगेन. सो दिस बिजनेस इज रनिंग फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एब्सोल्युटली लेजर शार्प ऑन एग्जीक्यूशन. यही हमारा फोकस है. मिस्टर बालाजी, हमने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी जो देखा, एक मार्जिन एक्सपांड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस ये मान रहे, एक्सपर्ट्स ये मान रहे कि क्या CV साइकिल में थोड़ा सा स्लो डाउन आगे दिख सकता है. देखिए, पैसेंजर व्हीकल थोड़ा स्लो डाउन रहा था, लेकिन CV आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा था. क्या वहाँ स्लो डाउन की इंडिकेशंस है? CV साइकिल इज एनीबडीज गेस. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बियॉन्ड अ पॉइंट नॉट रेलेवेंट. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज वेरियस सेगमेंट्स जो है, हमारा मार्केट शेयर कैसे चल रहा है, नंबर 1. कस्टमर फीडबैक कैसे चल रहा है, नंबर 2. प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चल रहा है. यही 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइकिल सबका है इंडस्ट्री का. इसमें जो देखेंगे, जो हेवी सेगमेंट्स है, पैसेंजर कैरियर सेगमेंट है, इंटरमीडिएट सेगमेंट है, ये सब में हमारा मार्केट शेयर ऊपर चल रहा है. एक ही हमारा कैटेगरी अच्छा नहीं कर रहा है, वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स है. उसमें हम बहुत सारा ध्यान से काम कर रहे हैं. ये बरस वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर दैट सेगमेंट इज कंसर्न. If that is fixed again, we should get back to share growth as an overall portfolio. Profitability जो है, this is the first time in the last 25 years CV का profitability बढ़ रहा है when the heavy commercial vehicle business is actually declining. That has not happened in the history of the last 25 years in CV. That is again a very important metric in terms of how the health of the business is actually increasing, because every segment is starting to fire. It is not only the heavy commercial vehicle segment there. That's the second part. And customer feedback is translated into market share, because this is a very इनका जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी, हमसे भी उनको अच्छा तरह लगता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, उसका वैल्यू है कि नहीं है. द फैक्ट दैट माई मार्केट शेयर इज स्ट्रॉन्ग इन ऑल माई सेगमेंट्स बारिंग स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स इज टेल्स मी प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड. जो भी प्रोडक्ट, इवन इन स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है. इन फैक्ट द रिव्यूज़ आर एक्सेलेंट. I have a go-to-market issue, how we are taking the product, the channel which we are working with our channel partners to fix that. Is Baras is very important to fix a small commercial vehicle business. Looks like a very important year for you then, Mr. Balaji. एक और क्वेश्चन हमने देखा कि, और ये अक्रॉस सेगमेंट, अक्रॉस इंडस्ट्री दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर्स में मेजरली, वहाँ पर थोड़ा उस तरह से पिकअप नहीं हुआ जैसे एंटिसिपेशन थी. हम आपके केस में अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, FY23 में कहाँ आपका पीक मार्केट शेयर आउट ऑफ द इंटायर गैमेट ऑफ थिंग्स में 82% के करीब शेयर था, वो डिक्लाइन हुआ FY24 में, और अब 25 में EV सेगमेंट का मार्केट शेयर और ज़्यादा फर्दर डिक्लाइन हुआ है. यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी और यहाँ के क्या मेजर हाईलाइट्स हैं? See, two things. As far as I will talk passenger vehicles. Passenger vehicle में हमारा market share is a less important metric, क्योंकि it's such a small market, it's very volatile. What I am not happy is the decline in absolute volumes this year, which EV volume should have gone up. Yes. Previous year हमने 73,000 बेचा था, इस बरस हमने 64,000 बेचा है. इसमें the main problem has come out of जो हमने fleet sales कर रहे थे, where FAME 2 incentives got withdrawn and competitiveness of EV in that market went down. Some जो EV players जो है fleet operators, उनका भी थोड़ा problem हुआ था. That is an area we need to fix. जो private segment है, that's continuing to do well for us, that is not an issue. But at the same time significant competition is coming into the market, जो EV के लिए अच्छा है, क्योंकि हम इसमें मार्केट शेयर्स के मुताबिक ये मार्केट को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं. शुड नॉट डू इट. जो हमको इसको देखना है, इसमें पेनिट्रेशन कितना चल रहा है. EV पेनिट्रेशन इन ओवरऑल पोर्टफोलियो अभी भी 2.3% है, हमारा 11% है. दैट इज़ द वन दैट वी नीड टू कंटिन्यू टू टेक इट अप टू 30%. उसके लिए क्या क्या चाहिए? पहले पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चाहिए. हमें एक ही प्लेयर है जो ये 8-9 लाख का गाड़ी से लेके अभी तो 25 लाख तक गाड़ी का EVs में है, एंड दैट विल गो अप इवन फर्दर. जो अब जब अविनिया लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर, हैरियर EV अभी आ रहा है, सियरा आ रहा है. सो देयर इज़ इनफ एंड मोर एक्शन ऑन द प्रोडक्ट साइड. सेकेंड फोकस एरिया है चार्जिंग नेटवर्क. सो कंसर्न जो पब्लिक का रहता है, 2 कंसर्न्स है मेनली, एंड थर्ड इज़ अ स्मॉलर कंसर्न. वन इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या है, रेंज क्या है,
और थर्ड है मेरा पुट डाउन प्राइस क्या है। यही तीन मेन कंसर्न्स रहता है। उसमें चार्जिंग इंफ्रा लास्ट ईयर वी पुट ऑलमोस्ट 21,000 फास्ट चार्जेस देयर। वी आर वर्किंग विद ऑल चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स टू इंश्योर दैट जो हमारा ऐप में आपको पता चलेगा कौन सा चार्जर किसका, उसका हाल क्या है, अवेलेबल है कि नहीं है, बुक कर पाऊँ क्या, उसका पेमेंट कर पाऊँगा क्या, all that in one IRA app. You have connected all the partners together. That work will continue apace to ensure charging network बढ़ते जाएंगे उस पर। एंड उसमें और जो प्लेयर्स आ रहे हैं उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो चार्जर का कॉस्ट अमोर्टाइज होएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट मोर प्लेयर्स कम इन। सेकेंड इज रेंज। पहले था व्हेन यू स्टार्टेड गो बैक इन टाइम इट वाज 120 किलोमीटर रेंज। अभी तो ऑल कार्स कमिंग इन आर 400 किलोमीटर्स रेंज प्लस। उसमें पर विद इन द सिटी ड्राइव करेंगे आप 50 किलोमीटर रन पाएंगे। सो 8 दिन का किलोमीटर चलता है, 8 दिन का एक चार्ज में 8 दिन चलता है, मोर देन इनफ। टियर 2 टाउन्स इट्स इवन मोर देन दैट। सो वंस यू क्रॉस 400 किलोमीटर्स द रेंज एंग्जाइटी गोज डाउन। दैट combined with charging network, conceptually this thing should crack, and then we need to communicate better, ensure that we reassure our customers on that front. So this is a full-fledged action plan on that front. एंड वी आर द मार्केट लीडर्स। हमको उसकी तरफ से उसको बिहेव करना पड़ेगा, मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। ये मार्केट शेयर गेम नहीं है, ये पेनिट्रेशन गेम है। नहीं नहीं, वो चैलेंजेस हैं और सारे अक्रॉस द इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट टू व्हीलर सेगमेंट इज डूइंग रिलेटिवली बेटर इन ईवी स्पेस। वन मोर क्वेश्चन मिस्टर बालाजी, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी और मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग के पर्सपेक्टिव से ये देख रहा है कि टाटा मोटर्स का सीवी और पीवी बिजनेस डीमर्ज कब होगा। क्या इसके बारे में कोई टाइमलाइन शेयर कर सकते हैं? सो May 6 हमारा EGM हुआ था, तो उसमें वी गॉट ऑलमोस्ट 99.995% ऑफ आवर शेयर होल्डर्स वांटेड द डीमर्जर, व्हिच इज़ फैंटास्टिक। वी रियली रिस्पेक्ट देयर सपोर्ट ऑन दैट फ्रंट। अभी इट गोज़ टू NCLT एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जुलाई से लेके सितंबर तक उसका अप्रूवल आ जाएगा। Once it comes, July 1st is the appointed date. उस दिन onwards, the accounting will be splitting as CVPV and officially will go out as two different companies. Effective date जो है, which is from where the company will operate as two different companies, will be from 1st of October. So that is what we are running towards. So we are confident we'll get it in that time frames. श्योर। एक और वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत हद तक वन लास्ट क्वेश्चन कि शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से तो बाज़ार की बहुत ज़्यादा नज़र एक तो सीवी और पीवी सेगमेंट के डीमर्जर पे है। दूसरा, बहुत बार ये भी लगता है कि जो FY26 है, इस साल में जो सीवी में थोड़ी सी डाउन साइड थी, थोड़ा स्लो डाउन था, वो शायद अब एक बेस पे आ जाएगा, उससे नीचे फर्दर डाउन साइड नहीं है। क्या ये कहना ठीक होगा? See, market is a market. We do our job, and I think I would only say we don't run the business एक क्वार्टर के और 2 क्वार्टर की वजह से। सेंटिमेंट में we can't run the business. Look at the fundamentals. India GDP growth is in a good place. Freight rates are holding high. Interest rates are stable. Fuel costs are stable. GDP in terms of diversified growth across sectors starting to move again. Investments from the government is happening in a good pace. Why will GDP not grow? Why will CV not grow? It'll be a noise one quarter here or there, but you can't run a business of this size for a quarter here or a quarter there. And as long as we are focused on the long term, things always fall in place. Thank you for your valuable time. Thanks a lot.